حقس مز ایکس گریشیا دنک اعلان صوبائی کمشنر جوم تو دویمین افسرن ہند جی ایم سی جومیک دورہ صورت حالس ہچک سام ہسپتال انتظامیہ زخمین ہند باپت معقول انتظام کرنے ہدایت تو خشک موسم روزن ست ضلع پنچس مز زمیندار پریشان مقامی زمینداروں طرف محکمہ زراعت کن ذمہ دارن مفید مشورہ فراہم کرنے اپیل السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہنزن سڑکن پہ یت سڑک حادثن دوران انسانی زو زائیں سپدنک سلسلہ بدستور جاری تت آز دوپہرن چوکی چورا اخنورس مز اخ دلدوز حادثہ پیش آمت یت مز مرن والن ہند تعداد 22 ووت یل زن ات حادثس مز کیا درجن یاتری زخمی تہ سپد ون یاتری یو پی بہار تو دویمو ریاستوں پہ شیو کھوڑی درشن کرنے باپت آز گھان یتھ دوران اخنور واتت گاڑی ڈرائیور سند قوبو نبر سپدت اکس کھائی مز لائنہ آئی تو یدوی حادثہ پیش ینس ستی بچاؤ کاروی شروع کرنا آئی تاہم ات حادثس مز آخری اطلاع واتنس تام 22 یاتری ہلاک سپدمت یل زن 40 کھوت زیادہ یاتری زخمی شامل مرن والن مز یہ زن مرد تو بچہ شامل تت زخمین مز تہ زن مرد تو بچہ شامل یم زن جی ایم سی جومس مز علاج معالجہ باپت داخل کرنے آمد گاڑی آئی 4 پہیہ کی موڑ کی بات ہے یہ جہاں پہ گاڑی کور نہ ہوئی تو باؤں دے دی کھائی میں بس ایسا اوپر اب سگا پہ نہیں کہ سر درشن بھائی کھائیں کا نہ بھائی جا رہے درشن کری ہوئی سب کوڑی کے ہمیں 70-75 آدمی اٹھا کے لائے یہاں دیا پہلے تو وہاں پر لے کے بھرتی کرے پھر ماں یہاں لائے ہو ہاں پورا پروار نہیں ملا ہے کہاں ہاں سب کوڑی جا رہے یپر صوبائی کمشنر جوم تو انتظامی کے دویمو افسروں گورنمنٹ میڈیکل کالج جومیک دورہ کورمت یتھ دوران تمو صورت حال سام ہیچ یل زن صوبائی کمشنرن وون زخمین پریت کان سہولیت آیتن تھونس حوالہ میڈیکل کالج انتظامیہ ہدایت دن آمت یتھ زن تمن کن قسمک مشکل ویترن پین دیکھیں جو یہ ایک بس تھی یو پی باؤنڈ بس تھی جو کہ سیو کھوڑی جا رہے تھے جو اخنور کے پاس میں ٹانڈا کے پاس میں آگے گئے تو ان کنٹرول ہو گئی بس بھورج میں چلی گئی جس سے کہ امیڈیٹلی وہاں پہ ریسکیو آپریشن چلایا گیا جس میں سول ایڈمنسٹریشن یو ٹی ڈی آر ایف اور جے کے پولیس کی طرف سے چلایا گیا امیڈیٹلی وہاں سے دیکھا گیا تو وہاں پہ جب ریسکیو کرنے لگے تو انفارچونیٹلی وہاں پر جو ہے 22 لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ تھے جن کو امیڈیٹلی وہاں پہ شفٹ کیا اس کے علاوہ انجرڈ تھے ان کو وہاں پر امیڈیٹلی شفٹ کیا گیا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ایم سی میں رکھا گیا ہے ان کی پراپر کیئر کی جا رہی ہے اس میں سبھی لوگوں کو اسٹیبل کیا جا رہا ہے تو بچے بھی ہیں اس میں لیڈیز بھی ہے یہاں پر جو 60 لوگ ایڈمٹ ہے جن کو اسٹیبل کیا جا رہا ہے 2 لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ابھی تک سیریس ہیں باقی سبھی لوگ اسٹیبل ہیں اور 22 لوگ جو ہیں ان کا آئیڈینٹیفیکیشن چل رہا ہے اخنور کے ہاسپٹل میں جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گا تو ان کو بتا دیں دیکھو یہ جو ہے اس میں ایک جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے ان کی چیئرمین شپ میں ایک انکوائری آرڈر کی گئی ہے وہ انکوائری کریں گے کس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کیا ہوا اس کے بعد میں نکل کے آئے گا کہ کس طریقے سے اوور لوڈیڈ تھی یا پھر اس میں کوئی روڈ انفراسٹرکچر میں یا ڈرائیونگ سینس نہیں تھا جو بھی ہوگا وہ انکوائری کے بعد میں بتاتا ہوں رپورٹ کب تک آئے گی رپورٹ یہ 15 دن کے اندر آ اچھا یہ انجر ٹوٹل کتنے ہیں یہاں تو یپر بھارتیہ جنتا پارٹی ہند یو ٹی صدر رویندر رینان تو جی ایم سی جومیک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ پارٹی ہند دویم لیڈر تہ موجود ات دوران یہ تمو زخمین ہز خبر اتر تت تمو واقعس حوالہ افسوس اظہار کران مرن والن ہندین لواحقین ست یکجہتی ہند اظہار کورمت یل زن تمو ات موقع پہ وون بھارتیہ جنتا پارٹی ہی پریت کان کوشش کرنے یت زن گورنمنٹ میڈیکل کالج جومس مز زیر علاج زخمین کن تہ قسمک مشکل ویترن پین
गदपुर खान साहब बडगमिस मज ये रात अकिस दिलदोज हादसे पेश यिनस दौरान 3 मुकामी नौजवान जहां बाग सपद तत PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन मामलस हवाले अफसोसुक इजहार करान सरकारस मांग कर्म मुतासर अयालन गस भरपूर मदद करने युन युत जन यमन अयालन बापत दोह गुजार मुश्किल सपदे। सबसे पहले ये बहुत दुख की बात है कि हमारे गतिपुरा खान साहब में कल जो हादसा पेश आया जिसमें कुएं को साफ करते हुए 3 नौजवान जान बहक हुए, बहुत अफसोस है उस पर और साथ ही मैं उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करता हूँ और साथ ही सरकार से ये भी इस्तदा करता हूँ कि नौजवान होने के नाते और उनका घर में उनके बगैर कोई सहारा नहीं, उनको माकूल एक्सग्रेशन रिलीफ दिया जाए। और साथ ही बदकिस्मती से कल करालपोरा हंदवारा में भी ऐसा ही वाक़ा रोनुमा हुआ, तो सरकार को चाहे कि इसकी तरफ तवज्जो दे कि आए दिन जो ये लोग बज़ात खुद बगैर किसी महारत के, बगैर किसी टेक्निकल राय लेने के बगैर कुएं पानी के लिए खोदते हैं, तो सरकार को चाहे कि इस बारे में वो देखे कि एक लाहे अमल मुरतब करना चाहिए। जैसा कि सरकार की तरफ से ये ट्यूबवेल खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, या दूसरे तरीके से लोगों को पानी मैसर किया जाता है, उसमें पहले एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाती है। तो इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी इस वक्त ऐसे कुएं तामीर किए गए हैं उनकी बाज़ाब्ता सर्वे करके वो पहले उनकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़ात न हो जाए, बल्कि उनको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। सरकार के पास इनके आदाद शुमार होने चाहिए और ये भी सरकार के पास वाज़ेह होना चाहिए क्या वाकई वहाँ पर ऐसे कुएं खोदने की ज़रूरत है, जबकि हम एक तरफ से जल जीवन मिशन के बारे में बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हर घर हर नाल, तो उसका मकसद यही है कि ऐसे वाक़यात फिर रोनुमा नहीं होने चाहिए, इसलिए उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने जो वहाँ पर हमारा डिविजनल इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, और जो कंसर्न रेस्क्यू के साथ पार्टियाँ थे, मैं उनका भी बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में और रात देर तक काफ़ी जद्दोजहद के बाद, मेहनत के बाद उन्होंने उनको उस कुएं से बाहर लाया, तो उनका भी शुक्रिया करना ज़रूरी है। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर सैफुद्दीन बटन वाक़स हवाले अफसोसुक इजहार करान वोनमुत ज यह बोड़ सानिया तो इंतजामियास पज़ मुतासर अयालन भरपूर मदद करुन, यल जन तिमो वोन ज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करनस हवाले ते गछन संजीदा कदम तुलने यीन। ज़ाती तौर इलाके खान साहब अपनी तरफ से, खान साहब के लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से जिन खानदानों, 3 खानदानों को ये सदमा हुआ, उनके इस दुख के साथ बराबर शरीक हूँ। और ये जो नौजवान 2, खास कर इसमें एक शादीशुदा, उसकी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, और 2 छोटे नौजवान जिनकी भी शादी भी नहीं हुई थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहाँ मैं था, वहाँ मातम इमाम बाड़े में ताज़ियत मना रहे थे, एक ही जगह पर। घर एक मनाता है ताज़ियत जिसका कोई बंदा गुजर जाता है, मगर ये गाँव के गाँव ने ताज़ियत मनाया इमाम बाड़े में, क्योंकि ये एक घर का ताज़ियत नहीं, ये सारे गाँव का है, सारे इलाके का, सारे जम्मू कश्मीर का ताज़ियत है। हमें तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे गुनाहों को बख्श दे। 3 जगह ऐसी वाक़यात हुए कश्मीर में इसी पानी पर, तो दूसरी जगह भी डूब गए हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें आजमाइश है, नागहानी आफात, चाहे वो मेवों की हालत है, चाहे वो रोडों के एक्सीडेंट की हालत है, चाहे पानी की हालत है, चाहे बिजली की,
किसी न किसी मुसीबत में हम इस वक्त शिकार होते हैं, जिसका शिकार ये भी हो गया। खासकर पिछले हुक्मरान जो नुमाइंदे थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने इस इलाके को पानी काटा था, पानी सप्लाई नहीं दी थी। अगर इनको पानी की सप्लाई मिली होती तो कुएं की जरूरत नहीं पड़ती। ये हाथ JK कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आई ठेकदरन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युत जन ठेकदरन मजीद मुश्किल बेहतरीन बयान। तो हमने शॉर्ट नोटिस में बुलाया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, क्योंकि हमने इसलिए आपको बुलाया कि हमारा इस वक्त बहुत एक बहरान चल रहा है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट ने पूरे रॉ मटेरियल पे बैन कर दी है, लेकिन हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अगर रॉ मटेरियल पे बैन आप करोगे तो यहाँ की डेवलपमेंट कैसे होगी। जैसे कि हमारा एक वीएन का जो सोर्स था, वहाँ से हमें कम से कम सोलिंग निकलती थी, ग्रेड सेकंड निकलता था और वेट मिक्स निकलता था। पिछले 8 महीनों से पूरा उनको वहाँ से बंद, जॉर्जी एंड माइनिंग ने वो पूरा बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, अगर ये बंद हो गया, फिर जो हमारे पास हमारे अलॉटेड इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, या आप यहाँ देखो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी इस वक्त चल रही है, उनको भी बहुत से हमारे ठेकेदारों के बहुत सी दुश्वारियां हो रही है कि रॉ मटेरियल के हवाले से, जिसमें हमें वहाँ वेट मिक्स लगता है, ग्रेड 2 लगता है। लोग परेशान है कि काम क्यों नहीं हो रहा है जल्द से जल्द। लोगों को बहुत तकलीफ है कि काम क्यों नहीं हो रहा है जल्द से जल्द। लेकिन हम उनको क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट ने और जॉर्जी एंड माइनिंग ने पूरे सोर्स जो यहाँ पर है रॉ मटेरियल के हवाले से। जिले पुंछ से तोलुक थवन वाले जमींदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुत ये खुश्क मौसम रोजन सम कईयों रंगों मुश्किल मज हेन आमुत तब महकमा एग्रीकल्चर तरफ तिमन कह अथवास कर यमकिन तिम आवलिनस मज हेन आय। मुकामी जमींदारों तरफ ये महकमा एग्रीकल्चर कन जिम्मेदार मांग कर आई तिमन ग जमींदारी हवाले मुफीद मशवर दिन इन तब जमींदारों तरफ वन आमुत जमींदारन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले महकम संजीद तो जमींदारन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले संजीद कदम तुलने। धान लगाएंगे, अभी पहले कणक लगाई थी वो काट ली है, अभी धान लगाएंगे, मक्की लगाएंगे। कोई मदद इस वक्त तक जिम्मेदार को तो ऐसे तो है जो मिली नहीं है। हाँ, पहले बोलते थे कि इतना बीज मिलेगा, इतनी खाद मिलेगी, इस वक्त तक तो मिली नहीं। किसी के कार्ड में देख लो, किसी के और खाते में देख लो कि इतना चीज गवर्नमेंट ने दिया है फ्री किसी को, या किसी फायदे का दिया है, वो तो मिला नहीं। बोलते हैं कि ऐसी चीज मिलेगी, ये मिलेगी, तो मिलता तो कुछ। मेरा नाम बशीर खान जी। बशीर जी दसो किस तरह ये अस इस वेले हाल पाई है ताने वास्ते जमीन तैयार की ये देखो ना, बेथल बीजी नहीं है, कनक कट्टी पहला कनक कट्टी का कि असा इस ताने वास्ते तैयार की है जमीन। एग्रीकल्चर ने तरफों असें कोई ना खाद ना बीज ना मक्की ना कोई बीज कोई सहूलियत नहीं। सिर्फ जिमीदार की कोई बचना ही कख नहीं। 1500 रुपया घंटा ट्रैक्टर की देने के बच्चा हाल ही लाने लोगों ने जमीन कमाने ला खाने। सरकार को पीछे तो बड़ा कुछ आना, लेकिन आगे कुछ नहीं मिलना भैया। पीछे जो ऐसे है गुलपुर जोड़ भी देन लगे खाद, बस हाल ही ना चले ऐसा दिता किसी को। डिपार्टमेंट ना कोई पूछना ही, डिपार्टमेंट आना ही नहीं। आने जिले ताशे लक्षण बनासन वीडियो क्या क्या मिला। अब वो बात आ गई, पहचान वाला कोई होगा तो किसकी रोजी में लाट डालेगा। इसलिए हमें मजबूरन मीडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज जो है ऊपर पहुंचाए और सरकार तक पहुंचे कि हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए। क्यों कि हम खाद भी अपनी जेब से डालेंगे, दान भी अपनी जेब से डालेंगे, कुछ मिलने वाला है नहीं है तो क्या करें। परेशानी है जनाब, तुम बहुत शुक्रगुजार ना मीडिया ना, तुस कुदरती सुझाव रहे हो। आज तुम अर्ज करने के अगर सरकार तक साड़ी ये गल पुजी जाए। कारण यह है कि इस स्कूल में बहुत पैसा आना, समझ नहीं आनी पैसा जाना कि पास। हर साल ना पैसा आना, इसमें इस वक्त तुम देख लो, तुम खुद देखो, ये देखो कूल बिल्कुल सुक्की नहीं है। इसमें अंदर कसे पानी लभी जाए एग्रीकल्चर की तरफों या गवर्नमेंट सारी मदद करे पानी दिया सही
आज इसने भी पंजाब से ज्यादा चीजें उगाई सक रही है, लेकिन पानी तो बगैर, इसलिए देखो ऊपर रोड आया था, कुदरत की तरफ मार पाएगी, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है कि इसने भी नहर भी पानी आना चाहना, इस भी नहर भी दसने के महाराजा ने टाइम इसने भी छिट्टी नहीं रुड़िया जानी होनी सी, तो आज कहते तो छोटा मुर्गी में बच्चा भी छोटा वो भी नहीं रोना। ये तकरीबन पूरा सियाल तो पूरा ये 8-9 महीने हो गए पानी बंद, ठेकेदार पहले रोकी रखे जैसे काम करने, असं सोचा जी चलो असं नहीं चाहना तो चलो ये नहर तैयार हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा पानी ही नहीं है। महकमे ने कहना कि ऐसे 8 डैम को लिए वो है ही नहीं, किसी ऐसा देखे कोई नहीं है, तो सुना तो ख्याल हो, अगर कोई असं सरकार सुननी है सारा बड़ी बड़ी मेहरबानी होती, असं पानी ना नहर भी जगह देता है, पशु लोगों ने जो वो पानी तो बगैर मार रहे है ही नहीं है, पानी पीने ऐसे नहीं, बहुत कोई काख नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा देखे नहीं एग्रीकल्चर है कौन, सिर्फ जाने के पार देखो तो दफ्तर आने खाद शाद बस और दस, इधर कोई बंदा आए थे एग्रीकल्चर कोई नहीं है। काम पानी है ही नहीं, ना कोई महकमे ने आना, ना कोई इसने आना है, मालक आना है, जमीन दे छोड़ी माल हालेगी, खाओ खसमा की जिसका मर्जी है लाओ, देखो पूलिया सुकी भी कहाँ जो ये जीवियाँ लावा तो क्या कर, कोई है ही नहीं, काख नहीं मदद है, ए पूछने नहीं, खाद भी जमीन 5 रुपए तोड़े भी ज्यादा ले लेने, कहाँ नहीं मदद है एग्रीकल्चर, कोई मदद है, इसलिए भैया कोई मजबूरी असंगी जमीन लाने आई नहीं तरीका। पानी इस वक्त भी देखने में बांधी है जी, 6 महीने हो गया, फगन भी टूटी है या नहर, जरा एक पानी आना बिथड़ा में जो पूरा नहीं होना, आखने जी महकमा पानी दी सी, इस बार मुलाजम है, मुलाजम इस टाइम थोड़ी कोई देखा ही नहीं, केड़ी जगह ने मुलाजम क्या करने, मैं उठ गया असंगी जान असा फाइल आई। सबसे पहले आपका शुक्रिया जहाँ पे आके इंटरव्यू का। तो इस अजोट में नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ के भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे मैं अभी सूरनपुर से होके आ रहा हूँ, तो अजोट का जो है, अजोट का हमारे एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब खुद जा रहे हैं, परसों और कल मेंढर मंडी उधर से होके आए हैं, फील्ड ऑफिसर हमारे हैं, और आपने कहा तो मैं इसको पर्सनली देख लेता हूँ, अभी निकल के जाके देख लेता हूँ। लोग उसमें अपनी बिल्डिंग्स में रखते हैं, उनको हम किराया देते हैं और वो अपने उधर से करके, ताकि हर एक जगह से फार्मर को उनके डोर स्टेप पे सीड दिया जाए, किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नहीं, कुछ नहीं, जो फिक्स रेट रहता है हमारे सारे के सारे स्टोरों में रेट लिस्ट पेस्ट की होती है स्टोर के बाहर, तो उसको देख के कोई भी देख के ले सकता है, किसी का 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता, उसके डोर स्टेप में देना है तो चार्जिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, कोई एक भी अगर केस हो तो आप बताएं, एक सिंगल केस भी होगा मेरे नोटिस में लाएं, 2 मिनट में उसका एक्शन होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं। जनूबी कश्मीर हंदिस त्राल कस्बस सहित वाबस्त लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज एनिमल हस्बेंड्री महकम बापत इमारत तमीर करने हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम छना आज ताम यह इमारत मुकम्मल करना आमत यमकिन चाव चारवे रचन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दनियुन युद्ध जन इमारत मुकम्मल करने हवाले संजीद कदम तुलने यन। एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग यह 60 वरी ब्रोट आमज बनाने, यह जबरदस्त खस्ता गमत, अत मन कुन सात गिरन खतरे, यह जन यमो यह नव बिल्डिंग बनो, अत गोस इंतजाम दारन दरवाजन हुन करने, ताकि अत मज यह फायदे वारिया कह। बहुत गुजारिश अस कोर वारिया लटि मतलब गुजारिश, तो मगर अत पे तवज्जो दिवान कह। अत मुतलिक यह निवान बयान कि यह हसा गई बदल इस तमीर कर्मस, अत मज कुन सात कह डैमेज गि, तमिक जिम्मेवार कुस रोज पे, ये लग मतलब पोस ये नई बिल्डिंग, मगर ओकुन तवज्जो दिवान यम कहें। मेहरबानी कर हुकामन गुजारिश कर कि अत पे दीजन तवज्जो, अत वो 2-4 वरी वन पगह कलकत, मगर यह कचन टाइम लचन पे गि नो वन तैयार, यम हेकन यह लगित क्या, मेहरबानी कर तो जल्द अज जल्द तैयार। देखिए, आपका कहना सही है कि ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा है, बिल्कुल अनसेफ है। तो नई जो बिल्डिंग थी ये 2012 में स्टार्ट की थी उन्होंने, तो फिर कुछ उन्होंने बताया कि कॉस्ट एस्केलेशन हुई तो उस वजह से उसका काम रुक गया। तो हमने बारहा हर वक्त आगे हायर अथॉरिटी जो है उनको बात पहुंचाई है कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। तो जो हमारी मैडम थी, डायरेक्टर मैडम थी, तो उन्होंने
पिछले साल हमें एश्योरेंस दी थी कि अगले साल जो है इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई मस्बत कदम जो है नहीं उठाया गया, जिससे पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। जी बिल्कुल लिखा, पिछले साल लिखा, इस साल तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि इस साल जो है 2024 में इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम इस पर स्टार्ट नहीं हुआ है। नूराबाद कोलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद जी यदवे मुकामी नहरी हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमद मुकामी लोगों तरफ ये नहरी हज साफ सफाई हवाले इंतजामिया मांग करने आमज तत लोगों तरफ वन आमद ये नहरी हज सफाई सत कईहन शायन अमिच मरमत करने सत नूराबाद तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन जमींदारन सठई राहत वात। ये मजगाम तक जाती है, इसमें कम से कम 25 गांव आते हैं। 25 गांव आते आते इसमें देख लो खुद भी इसमें कंक्रीट कहीं भी अभी नहीं हुआ है, जो कि पीछे से लेके जो गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल है वहाँ से लेके यहाँ तक भी देख लो कि यहाँ पे कितना डैमेज होता है। इसमें हमारे मकानों में पानी घुस जाता है, कई बार पिछले साल भी बाढ़ आ गई तो उसमें भी सारा पानी जो है हमारी ज़मीन में हमारे मकानों में चला गया, हमारा खुद का नुकसान भी हो गया। तो 10 बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इसमें कंक्रीट एक बार कर दो, लेकिन कोई भी इसकी तरफ कोई नज़र कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी देखो कि ये कनाल जितनी भी है सब गंदी पड़ी है, नीचे वाले लोग जितने भी है वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाले लोग कूड़ा करकट सब फेंकते हैं इसमें, लेकिन हमने आज तक इसमें खुद चेक कर लो कि हम कौन सा कूड़ा करकट फेंकेंगे, जो कि ये खुद इरिगेशन वालों की गलती है, वो खुद चेक नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि देखो ये गंदगी इसमें खुद ब खुद अपनी है, तो हम कौन सा गंद इसमें डालेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको कंक्रीट बना दें, अगर थोड़ा बनता जाएगा लेकिन फिर भी बहुत मसला हल हो जाएगा। क्या नाम मोहम्मद इसाक लाद वाद आज गवर्नमेंट साफ कर पे शुक्रगुजार गवर्नमेंट कर रुत, अगर लाद वाद करें दमहल तान कल कर फंक्शन, अगर यह साफ दिन करे शुक्रगुजार गामस मज मलबह बेमार वेमार चढ़ान अम सी, अगर यह साफ करें शुक्रगुजार ज्यादा तो ACD साहब इस वनकस ये नजर अम कर मेहनत ये कल वल अम कोर ओर इनाग्रेशन नहीं दी साफ कर अत लगे महनी वहनी तह मे गवर्नमेंट जॉब दिन नरेगा तहत जवान रोज बेकार। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत खुदा सवाल।